السلام علیکم، میٹرو ون نیوز کے ساتھ میں ہوں اریبہ سلطان۔ شہر نامے میں خوش آمدید، نظر ڈالیں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پر۔ رائے کے تھانہ مانگا منڈی کے علاقے ڈکیتی میں مزاحمت پر فائرنگ، بچے سمیت 3 افراد زخمی، ملزمان ہزاروں روپے نقدی، موبائل فون اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار۔ قصور کے نواحی گاؤں میں وکیل کے چیمبر میں فائرنگ، اسلم نامی شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی، ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب، پولیس نے تلاش شروع کر دی۔ چشتیاں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم کے مرکزی جلوس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلوس کی CCTV کی مدد سے نگرانی کی جائے گی۔ اور پتوکی پرانی غلہ منڈی میں شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی، آگ نے درجنوں دکانیں اور کھوکھے اپنی لپیٹ میں لے لیے، لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، شہر نامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن اس بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ شہر نامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے رحمان فاؤنڈیشن اینڈ فری ڈائلسس سینٹر کے زیر اہتمام اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سربراہ پاکستان سویٹ ہوم اور چیئرمین فاؤنڈیشن ڈاکٹر وقار احمد نیازی اور دیگر نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ رحمان فاؤنڈیشن اینڈ فری ڈائلسس سینٹر کے زیر اہتمام اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں فنڈ ریزنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان سویٹ ہوم کے سربراہ مراد خان، چیئرمین رحمان فاؤنڈیشن وقار احمد نیاز، مینیجنگ ڈائریکٹر میاں الفت رسول اور ڈائریکٹرز رحمان فاؤنڈیشن نسیم راجپوت، راہو اسلم اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ رحمان فاؤنڈیشن اس وقت 5 بڑے شہروں میں کام کر رہی ہے، جو اب تک 1,25,000 افراد کا فری ڈائلسس کر چکی ہے اور مزید شہروں میں ڈائلسس سینٹرز بنائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی اور عطیات بھی دیے۔ اس موقع پر چیئرمین اور CEO نے تعاون پر عوام اور میڈیا کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ میں سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا موقع دیا ہمیں، آج ایک اچھی جگہ بیٹھنے کا، ایک خدمت کے جذبے سے بیٹھنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس کو قبول فرمائے، اس کام کو، اس جذبے کو۔ اور حقیقت میں رحمان فاؤنڈیشن جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے، پہلی بات تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اپنا نام ہمیں دے دیا، رحمان کا نام دے دیا۔ تو یہ اس سے ذات باری کے نام کی برکت سے جو جتنے بھی آج کامیابیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ڈائلسس سینٹر نئے سے نئے بن رہے ہیں، مشینوں کی ضرورت ہے، ڈائلسس سینٹر بنانے کی خواہش ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی بھی برکت ہے۔ یہ کافو بھائی کا ادارے میں شامل ہونا، ایز اے ایمبیسڈر، ہمارے چودھری قمر کالو کا ادارے میں آنا، ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑ رہے ہیں، آج بڑی مجھے خوشی لگی، بہت اچھا لگا کہ آج ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم بیت المال گئے تو ہمیں یہی تھا کہ جن کے تعلق ہے، واسطہ ہے، انہی کو ملتا ہے، لیکن الحمدللہ کیونکہ ہم حق پہ تھے اور انہوں نے کوئی اس ٹائم تعلق نہیں تھا ان کے ساتھ، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی مہربانی، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارا خیال کیا، سینکڑوں لوگوں کے ڈائلسس ہوئے ان کی وجہ سے، اور یہ اللہ قبول کرے۔ اور ہمیں آج بڑی خوشی ہوئی، اسلام آباد کے اندر بہت ضرورت ہے ڈائلسس سینٹر بنانے کی۔ سب سے زیادہ مسئلہ اگر آ رہا ہے تو اسلام آباد کے اندر مسئلہ ہے، سب سے مہنگا علاج اگر ہو رہا ہے تو اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے، 12 ہزار روپے کا ایک ڈائلسس ہو رہا ہے، 16 ہزار روپے کا، اس طرح میں نام نہیں لینا چاہوں گا اداروں کا، 18,000 روپے لیے جا رہا ہے ڈائلسس کا، اور ایک بندے کے اگر 2 ڈائلسس ہیں یا 3 ڈائلسس ہیں تو کدھر جائے بیچارہ؟ 40-50 ہزار کا خرچہ ایک ہفتے کا، تو یہ بڑا مشکل بھی ہے، مہنگا بھی ہے، لیکن لوگ پریشان ہیں۔ انجم ستی، میٹرو ون نیوز، اسلام آباد۔
अब लिए चलेंगे आपको कसूर, जहां पर आपको बताएंगे कि कसूर के नवाही गांव में वकील के चैम्बर में फायरिंग से असलम नामी शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। और अब आपको ले चलेंगे गुजर खान। आपको बताएं, गुजर खान सर्विस रोड पर दिन दिहाड़े नौजवान कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। आपको बताएं, दिन दिहाड़े सर्विस रोड पर नामालूम अफराद ने नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त इस्माइल खान के नाम से हुई। मुलजिमान मौके से फरार हो गए, जिनके फरार होने की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें 2 मुलजिमान को असलहे समेत फरार होते देखा जा सकता है। और अब आपको बताएंगे, मुस्तफाबाद में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बायस लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे वाहिद मलिक से। जी वाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मुस्तफाबाद में मौजूद है, जहां पर चीनी के बाद अब आटे का बहरान भी सर उठाने लगा है। आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है और शहरी सुबह से मारे मारे फिर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनको इस हवाले से क्या मुश्किलात का सामना है। आटा का बहरान भी पैदा हो चुका है इधर मुस्तफाबाद लडियानी में। वैसे तो आटा मिल नहीं रहा, अगर कोई किसी से मिलता भी है तो वो अजाफी पैसे ले रहे हैं। तकरीबन 15 किलो का तोड़ा 900 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा क्या अपना घी, चीनी, हर चीज़ को जो है ना अजाफी पैसे लिए जा रहे हैं। कहाँ है इंतज़ामिया हमारी? क्यों नहीं वो इन लोगों को पकड़ दी? क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी? वज़ीर आला पंजाब से मैं अपील करता हूँ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि क्या आपके अफसर आप लोग और आपके अफसर सिर्फ शीशों के कमरों में बंद बैठे हुए हैं? आप गौर क्यों नहीं करते इन चीज़ों पर? क्यों ये लोग अजाफी पैसे ले रहे हैं लोगों से और मतलब जानबूझकर जो बहरान पैदा कर रहे हैं? खुदा के लिए बाहर निकलो अपने कमरों से और अपने अफसरान से बोलो कि वो आकर चेक करें और लोगों की जो मुश्किलात को वो देखें अगर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी है, शहरियों का कहना है कि आटा बिल्कुल मुस्तफाबाद में नायाब हो चुका है और जिस दुकानदार के पास आटा है वो अपने मनमाने रेट लगा रहे हैं और DCO कसूर से पुरजोर अपील करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। जी, और अब खबर देंगे आपको चिश्तियाँ से, जहां पर मुहर्रम उल हराम के हवाले से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में चहल्लुम का मरकजी जुलूस 28G ब्लॉक से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह दरबतूल में इख्तिताम पजीर होगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए हैं। आपको बताएं, चिश्तिया में मुहर्रम उल हराम के हवाले से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में चहल्लुम का मरकजी जुलूस 28G ब्लॉक से बरामद होकर जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह दरबतूल में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया है। DPO का कहना है कि जुलूस की निगरानी CCTV कैमरों की मदद से कंट्रोल रूम से की जाएगी। और अब आपको बताएंगे खानेवाल से। खानेवाल में स्कूल की फीस 2 दिन लेट जमा क्यों करवाई? 5वीं क्लास की तलबा ज़ैनब को पंजाब पब्लिक साइंस स्कूल की इंतज़ामिया ने मुबैना तशद्दुद के बाद मर्ग धूप में 2 घंटे खड़े कर दिया। मज़ीद जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे नईम इकबाल से। जी नईम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्कूल की फ़ीस 2 दिन ताख़ीर से जमा क्यों करवाई? बच्ची को पंजाब पब्लिक साइंस हाई स्कूल की इंतज़ामिया ने स्कूल से ही निकाल दिया। मुतासरा बच्ची ज़ैनब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, आप बताइएगा क्या वजूहात बनी थी, क्यों आपको स्कूल से निकाला गया है? 2 दिन मेरे बाबा कहीं गए हुए थे, 2 दिन फ़ीस लेट होने की वजह से उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया और कहा कि और मुझे इसी धूप में खड़े किया और हाथ ऊपर करके इसी धूप में खड़े रखा और कहा कि अगर आपके पेरेंट्स फीस नहीं जमा करवा सकते तो आपको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दें।
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اس متاثرہ بچی زینب بی بی کی گفتگو سنی ہے، ان کا کہنا ہے کہ کڑی دھوپ کے اندر جو ہے مجھے ہاتھ اوپر کروا کے کھڑے کیے رکھا، 2 دن صرف فیس تاخیر سے جمع ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے 2 گھنٹے جو ہے کڑی دھوپ کے اندر کھڑا کیے رکھا ہے۔ مزید زینب کے میرے ساتھ اس وقت پیرنٹس بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ بچی نے آپ کو گھر جا کر بتایا ہے، آپ پرنسپل صاحب کے پاس آئے ہیں، تو کیا معاملہ پیش آیا ہے کہ آپ نے ڈپٹی کمشنر خانیوال کو درخواست گزاری ہے؟ جب بچی نے مجھے گھر جا کے بتایا کہ میرے بابا مجھے 2 گھنٹے کے لیے دھوپ میں کھڑا کیا، مجھے ہاتھ اوپر کروائے اور میرے ہاتھ پہ سٹکیں بھی پرنسپل نے ماری، تو میں یہی شکایات لے کر پرنسپل کے پاس پہنچا تو انہوں نے میرے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کی فیس نہیں ادا کر سکتے تو آپ اسے سرکاری اسکول میں داخلہ دے دیں، ہمارے پاس ایسے بچوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو مجھے وہاں سے دفتر سے دھکے مار کے وہاں سے دفتر سے نکال دیا۔ اسی بات پہ میں نے آغا ظہیر عباس شرازی صاحب ڈی سی او صاحب کو درخواست دی اس ناروا سلوک کے خلاف کہ اگر بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے تو ان کے والدین کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو رہا ہے، تو یہ جانسن ہے اس کے ساتھ فوری کارروائی کی جائے اور اس اسکول کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ جی بالکل، زینب کے پیرنٹس کی آپ نے گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ زینب نے اپنے گھر جا کر جب بتایا کہ مجھے جو ہے صرف 2 دن فیس جو ہے وہ تاخیر سے جمع کروانے پر کلاس کے اندر جو ہے کڑی دھوپ کے اندر جو ہے مجھے کلاس سے باہر نکال کر کڑی دھوپ میں کھڑے کیے رکھا اور اس کے بعد جو ہے مجھے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، اور والدین جو ہیں وہ پرنسپل انور کے پاس، پنجاب پبلک سائنس ہائی اسکول کے جو پرنسپل ہے انور چودھری، ان کے پاس پہنچے ہیں تو ان کا رویہ ان کے ساتھ بھی حد تک امیز تھا، انہوں نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور جس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے تحریری طور پر ڈپٹی کمشنر خانیوال کو درخواست دے دی ہے اور ڈپٹی کمشنر خانیوال نے اسسٹنٹ کمشنر کو اس معاملے کی فوری طور پر انکوائری کرنے کا حکم صادر فرما دیا ہے۔ دوسری جانب سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر پرنسپل کا رویہ یہ ہے تو نیچے جو انہوں نے ٹیچر صاحبان رکھی ہوئی ہے تو ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر بچوں کے ساتھ اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ اگر یہ ایسا ہوگا تو آگے ان بچوں کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے۔ اس معاملے پر انہوں نے چیف ایجوکیشن اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے اس معاملے پر سخت نوٹس لے کر اسکول انتظامیہ کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی خبر دیں گے آپ کو رائے سے، جہاں رائے کے تھانہ مانگا منڈی کے علاقے ہتاڑ میں 3 نامعلوم مسلح ڈاکوؤں کی ڈکیتی کی واردات دوران ڈکیتی مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں کی اندھا دھند فائرنگ سے بچے سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ آپ کو بتائیں ڈی ایس پی سرکل رائے کے تھانہ مانگا منڈی کے علاقے ہتاڑ میں 3 نامعلوم مسلح ڈاکوؤں کی ڈکیتی کے واردات کے دوران مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی جس سے بچے سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈاکو راہگیر سے ہزاروں روپے نقدی، موبائل فون اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کیا۔ اور اب آپ کو خبر دیں گے ننکانہ صاحب سے۔ آپ کو بتائیں ننکانہ صاحب میں ریسکیو 1122 کی جانب سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ننکانہ صاحب میں 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ آفیسر ریسکیو 1122 محمد اکرم پنوار اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ننکانہ کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر اسفند یار کے باہمی اشتراک سے ڈی ایچ پی اسپتال ننکانہ صاحب کے ڈاکٹرز، ہیڈ نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے 2 روزہ فائر سیفٹی اینڈ بیسک لائف سپورٹس اورینٹیشن کورس کا اہتمام کیا گیا۔ ورکشاپ میں ریسکیو 1122 کے انسٹرکٹر محمد شاہد، علی اکبر، عرفان منظور نے شرکا کو مصنوعی طریقے سے دل اور پھیپھڑوں کی بحالی، گلے کی بیرونی رکاوٹ، زہریلی چیز کے نگلنے، سانپ کے کاٹنے، الیکٹرک شارٹ، ہارٹ اٹیک جیسی صورتحال میں ابتدائی طبی امداد دینے کے بارے میں آگاہی دی اور ان کی عملی تربیت بھی کروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آگ سے بچاؤ، آگ کے لگنے کی صورت میں کیے جانے والے اقدامات اور ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تفصیلی لیکچر دیے۔ اس موقع پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر اسفند یاد کا کہنا تھا کہ یہ ورکشاپ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ ہسپتال میں ہم ہر طرح کے مریضوں کو طبی امداد مہیا اور علاج کر سکتے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے انسٹرکٹر نے ہمیں انسانی زندگی کے بچانے کے لیے ایسے طریقے بھی بتائے ہیں کہ ہم کسی بھی جگہ خالی ہاتھ ہوں تو پھر بھی ہم دوسرے کی جان بچا سکتے ہیں۔ ورکشاپ کے اختتام پر انسٹرکٹر کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے تعریفی اثناء سے نوازا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری محمد کامران، میٹرو 1 نیوز ننکانہ صاحب۔ اور
और अब खबर देंगे आपको पतोकी से। आपको बताएं, पतोकी पुरानी गल्ला मंडी में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी। आग ने दर्जनों दुकानें और खोखे अपनी लपेट में ले लिए। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आपको बताएं, पतोकी पुरानी गल्ला मार्केट में अचानक आग भड़क उठी। आग ने दर्जनों प्लास्टिक के बर्तनों की दुकानें और स्टॉल्स को अपनी लपेट में ले लिया। दुकानों में मौजूद कीमती सामान जलकर खाकस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी होने की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। अब खबर देंगे आपको शरकपुर से। शरकपुर के नवाही इलाके मंडी फैजाबाद के निजी तालीमी इदारे ने अपनी साबका रिवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी मैदान मार लिया। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। स्टार्स कॉलेज एंड स्कूल मंडी फैजाबाद कैंपस ने अपनी साबका रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी मैदान मार लिया। FSC पार्ट 2 प्री मेडिकल में कॉलेज की होनहार तालिबा किंजा परवेज ने 1050 नंबर हासिल करके शरकपुर, मंडी फैजाबाद और मोड़खुंडा के इलाके में पहली पोजीशन अपने नाम कर ली, जबकि इदारे की दीगर होनहार तलबा जिनमें BSc पार्ट 1 की तालिबा जीनत शफीक 278, BSc पार्ट 2 में अनीसा शौकत 546 और मैट्रिक की तालिबा फातिमा लतीफ़ 1060 नंबरों के साथ नुमायां रही। शरकपुर के मकामी शादी हाल में पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्हें सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए, जबकि मुदस्सर खोखर को मीडिया कोऑर्डिनेटर्स के खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। अपने इदारे की शानदार कामयाबी पर कॉलेज के प्रिंसिपल खुर्रम शहजाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी इदारे की कामयाबी उसके स्टाफ की मेहनत से ही मुमकिन है। मजीद उनका कहना था, फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं तो स्टार्स कॉलेज मंडी फैजाबाद कैंपस की पहले दिन से ये कोशिश रही है कि हम इस इलाके में हर आने वाले दिन के साथ जो है वो एजुकेशनल फील्ड में वो नई चीज़ें लेके आ रहे हैं कि जो इस इलाके में मौजूद नहीं थी, ताकि यहाँ पे रहने वाले जो आवाम है, जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो गर्ल्स हैं, वो दूर दराज बड़े शहरों में, लाहौर, इन इलाकों में नहीं जा सकते या पेरेंट्स नहीं भिजवा सकते। उनके लिए हमारी कोशिश है कि उनको उनके घर की दहलीज पे जो है ना वो ये सारी सहूलतें हम मुयस्सर करें। जबकि अपनी इस कामयाबी को किंजा परवेज ने कॉलेज के काबिल असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दिया। बच्चों के वालिदैन और अहले इलाका ने कॉलेज के प्रिंसिपल खुर्रम शहजाद और उनके स्टाफ को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी मज़ीद कामयाबियों के लिए दुआ फरमाई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, मुल्क भर की तरह माचीवाल में भी टीचर्स डे मनाया गया। इस मौके पर पाकिस्तान प्रेस क्लब माचीवाल में डॉक्टर सईद अनवर भट्टी ने अपने टीचर मलिक शहजाद अहमद को खराज तहसीन पेश किया। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अवेस जट से। जी बताइएगा, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माचीवाल में, पाकिस्तान प्रेस क्लब माचीवाल में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद अनवर भट्टी, जो कि माचीवाल की एक शान नौजवान क़यादत है जो डॉक्टर बन रहे हैं। आज टीचर डे के हवाले से बाकी शहरों की तरह माचीवाल में भी टीचर डे मनाया जा रहा है। आइए हम जानते हैं डॉक्टर सईद अनवर भट्टी से कि इस टीचर डे के हवाले से इनकी ज़िंदगी में टीचर का क्या रोल है। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। मैं आज डॉक्टर हूँ, जैसे कि आप जानते हैं। मैं जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ जनरल हॉस्पिटल में। तो टीचर डे के हवाले से यही कहना है कि टीचर्स बहुत सारे होते हैं, इंसान को ज़िंदगी में बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं, लेकिन कोई एक या दो टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा डॉक्टर शहजाद साहब से, जो कि मेरे उस्ताद हैं डे 1 से। जब मैं 8th क्लास में था, जब मैं पढ़ना तो आता नहीं था उस वक्त, लेकिन तरीका इन्होंने सिखाया हमें, तो उसी तरीके को फॉलो करते हुए अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं इस पोस्ट पे पहुंचा हूं। तो मैं सलूट करूंगा शहजाद साहब को और थैंक यू बोलूँगा इनको। और एक टीचर्स की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। बस एक ही इम्पोर्टेंट है इस पे मैसेज कि टीचर्स की इज़्ज़त करेंगे तो कामयाब होंगे, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाएंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, डॉक्टर सईद अनवर भट्टी का कहना है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने टीचर्स की वजह से हूँ। मैं अपने टीचर को सल्यूट पेश करता हूँ। जी
और अब बात करेंगे शेखुपुरा के नवाही इलाके का। तामीराती काम कुछ अरसे कबल शुरू तो कर दिया गया, लेकिन आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बायस इर्द गिर्द आबादी के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद होने लगा। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान के निज़ाम तलीम के दावे दरे के दरे रह गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा के नवाही इलाका सरा वाला एक ऐसे स्कूल में जिस स्कूल का कुछ अरसा कबल तमीराती काम शुरू तो कर दिया गया, लेकिन आज तक मुकम्मल ना हो सका। अगर बात करें यहाँ के इसके इर्द गिर्द की आबादी की, तो इसके इर्द गिर्द की आबादी तकरीबन 300 घरों पर मुश्तमिल है और उन्हीं 300 घरों पर मुश्तमिल के बच्चों के मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे स्कूल की हालत ज़ार की, तो जो इसके कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था, खिड़की, दरवाजे और मोटर पंप पानी वाला लगाया गया था, वो भी चोर उखाड़ के ले गए हैं। जब हमारे अहले इलाका से बात हुई तो उनका यही कहना था, हमने बार हाँ सीओ एजुकेशन डीसी शेखपुरा से मुतालबा किया कि स्कूल को तामीर किया जाए, लेकिन उनके कान से जूं तक नहीं रेंगती। उनका यही कहना था, हमारी हुकूमत से अपील है कि इस स्कूल को जल्द से जल्द तामीर किया जाए, ताकि जो हमारे बच्चों को परेशानी दुश्वारी का सामना करना पड़ा उनसे बच सकें और यहाँ पे एक छत के तले बैठ के तालीम हासिल कर सकें। जी मज़ीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में मज़ीद खबरों को भी हिस्सा बनाएंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कहरोड़ पक्का में किसान फसल की कपास हुकूमत की जानिब से मुकर्रर रेट पर फरोख्त ना होने पर परेशान है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा ज़राई मुल्क है, जिसकी 70% आबादी किसी न किसी तरह ज़राअत से मुंसलिक है और ज़राअत पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत में फसल कपास को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, जिससे हासिल होने वाली रेशम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक में भी निहायत अहमियत की हामिल है। अरसा दराज से फसल कपास से मुंसलिक किसान शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कभी किस्मत साथ नहीं देती तो कभी हुकूमत की जानिब से मुनासिब दाम नहीं मिलते। इसी हवाले से किसानों का कहना है कि जी अस्सलाम वालेकुम जी, ई दफ़ा कपाह दी फसलां कोई खास कहनी थियां। कपाह दी फसल ई दफ़ा बहुत ज़्यादा गल गई है ते जट जरा ना बहुत परेशान हैं। खाद दा रेट, बीजां दा रेट बहुत महंगा है ते हर कोई भी जानता है कि मतलब हुकूमत को अपील है कि जट दी कि शफकत करें ताकि कोई अच्छा रेट करें। कपाह दा कोई रेट ही कहनी ते जट बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं ते हर चीज़ दा रेट बहुत ज़्यादा है। चीनी घिन गिनो, घ्यो घिन गिनो, कोई शय भी घिन गिनो, बहुत रेट ज़्यादा हैं। हुकूमत को सारी अपील है बार बार के मेहरबानी करें, शफकत फरमावें ताकि कोई अच्छा कपाह दा रेट कटें, ताकि कोई जट खुशहाल थी सके। जी बिल्कुल, किसानों का यही कहना है कि पहले भी हम कोरोना की वजह से जो है काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब कपास की फसल पर हमारे इतने अखराजात हो चुके हैं, कपास का रेट जो है मुनासिब हमें नहीं दिया जा रहा। किसानों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हमें मुनासिब रेट दिया जाए ताकि हम खुशहाल हो सकें। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। और अब बात करेंगे जहानिया में कोरोना वायरस से खदशात के पेश नज़र ट्रेनों के स्टॉप आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए थे, जो ताहाल बहाल न हो सके, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल जानते हैं काशिफ से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस खदशात के पेश नज़र लॉकडाउन की वजह से दीगर शहरों की तरह जहानिया रेलवे स्टेशन पर भी इलामा इकबाल और मिल्लत एक्सप्रेस समेत दीगर मुसाफिर ट्रेनों के स्टॉप आर्जी तौर पर ख़त्म किए गए थे, लेकिन कोरोना वायरस केसेस में कमी और लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद जहानिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉप बहाल ना हो सके, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, मज़ीद इनसे बात कर लेते हैं। जी, जहानिया में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जहानिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का स्टाफ आर्जी तौर पर बंद किया गया था, जो ताहाल बहाल ना हो सका, जिसकी वजह से हम मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमें 100 किलोमीटर सफ़र करके मुल्तान जाना पड़ता है और वहाँ से मुख्तलिफ शहरों के लिए रवाना होना पड़ता है। लिहाजा हमारी वज़ीर रेलवे से अपील है कि जहानिया में ट्रेनों का स्टाफ बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, जहानिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का स्टाफ बहाल ना होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों ने वज़ीर रेलवे शेख रशीद से मुतालबा किया है कि जहानिया रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों के स्टाफ बहाल किए जाएँ ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। जी
और अब बात करें इंतजामिया की गफलत और लापरवाही या कुछ और। सेवरेज के नाकिस इंतजाम के बायस शहर के वुस्त में गंदा पानी के जोबड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं एडी आमिर से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये शहर के वस्त में ये तालाब गंदे पानी का जो जौहर है, ये लोगों की परेशानियों में जो है इजाफा कर रहा है। पेट के इमराज में जो है इजाफा हो रहा है। यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं। यहाँ का ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो भी जो है रंग तब्दील कर चुका है और उसका बदबूर ज़ायका जो है वो मुज़र सियत बन चुका है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस मेन इशू के हवाले से, सेवरेज के नाकिस इंतज़ामात के हवाले से, इंतज़ामिया की बेहिसी के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जी, किसी भी सेहतमंद माशरे की बका के लिए साफ़ पानी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने बताया है, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये इस गंदे पानी की वजह से इस पानी की रंगत तब्दील हो चुकी है और जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशल जो स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर प्रॉब्लम बन रहे हैं। वो ना सही तरीके से पढ़ रहे हैं, ना अपनी तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं, ना ही वो किसी फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरी जो यहाँ के आला अफसरान हैं या हुकाम बाला हैं, वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त है कि इस मसले को जो है ना फिलफौर हल किया जाए और प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इस मसले को सॉल्व किया जाए, ताकि यहाँ की जो लोकल एरिया में जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो है ना ये पेट की बीमारियां और जो डिफरेंट डिजीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं इस पानी की वजह से, इस मसले को फिलफौर हल किया जाए। हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे। जी, जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर शहरी ज़्यादातर यही जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि ये पानी जो है वो बेज़ायका हो चुका है। इसका ना सिर्फ बड़ों के ऊपर असर हो रहा है बल्कि बच्चे भी जो है उसकी सेहत पर भी खासी जो है ये मुश्किलात पैदा कर रहा है। उनकी ज़हनी तरबियत और उनकी तालीम में भी जो है ये पानी जो है बेज़ायका पानी जो है वो मुतासर हो रहा है। यहाँ काफ़ी सारे लोग खड़े हैं और सबका यही मुतालबा है कि सीवरेज के इंतज़ाम को बेहतर बनाया जाए। इंतज़ामिया जो है वो अपनी बेहिसी को ख़त्म करे और इस सीवरेज के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करे। जी, अब बात करेंगे कसूर के हवाले से। आपको बताएं, कसूर के नवाही गांव में वकील के चैम्बर में फायरिंग से असलम नामी शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कसूर से मौजूद नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मलिक खुर्रम शहजाद से। जी, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं आपको बताता चलूं कि कसूर में आज दिन दिहाड़े जो कसूर कचहरी में एक सरेआम असला लेकर आए और साहिल को कसूर चैम्बर में ही कत्ल कर दिया गया। ये कसूर के नवाई इलाके खुडिया में इस बंदे के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस की कोताही और कमियों की वजह से वो जो मुद्दई थे वो दिल बर्दाश्ता होकर असलम उर्फ मंगी नामी शख्स जो अपनी पेशी पर आया था उसे कत्ल कर दिया गया। और इस मौका पर जब उसे कत्ल किया गया और गोलियों की आवाज़ की वजह से कचहरी में भी खौफ व हरास फैल गया। जी, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जब वहां पर इंतजामिया मौका पर तो पहुंच गई, लेकिन मौका पर पहुंचने के बावजूद 2 आदमी तो मौका से फरार हो गए, लेकिन एक जो मुलजम है यासिन नामी, उसे मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जी, मलिक खुर्रम शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, पाकपतन में मशहूर तसनीफ चंता के खालिक चेयरमैन प्रेस क्लब पाकपतन AD शाहिद की सालगिरह के मौके पर अजीम उल शान तकरीब का एहतमाम किया गया। आपको बताएं, सालगिरह का केक काटने के बाद पुरतकल्लुफ अशाइया भी दिया गया। ओहदेदारान और मेंबरान प्रेस क्लब ने सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, पैदाइशी इनकलाबी शायर अदीब AD शाहिद को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। सालगिरह तकरीब व अशाइया में मेज़बानी के फ़राइज़ मारूफ फिल्मसाज और प्रोड्यूसर सर मलिक अली हसन खोकर ने अंजाम दिए। खबर दें बोरेवाला से, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एहसानुल्लाह चौहान ने मुख्तलिफ थानों का दौरा किया। आपको बताएं, बोरेवाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वेहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने डेवलपमेंट रेवेन्यू के हवाले से मुख्तलिफ थाना जात की ज़ेर तामीर साइंस का विजिट किया। इस मौके पर DPO वेहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने हिदायत देते हुए कहा कि काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी थाने की नई और कशादा बिल्डिंग की सहूलत से जल्द इस्तेफादा हासिल कर सकें।
अब आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर थाना कोना खानेवाल पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SHO आफ्ताब कियानी की ज़ेर निगरानी थाना कोना पुलिस ने एक मंशियात फरोश जबकि 2 नाजायज असला में मुलव्वस मुलजमान असला समेत गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जा से 2 किलो 100 ग्राम चर्स, राइफल 44 बोर, पिस्टल 30 बोर और गोलियां बरामद कर ली। मंशियात फरोश मुश्ताक उर्फ काला टिंडा, सकना नुनारी मोड़, फरीद वल्द नूर मोहम्मद राजपूत, सकना पुराना खानेवाल, सुबहान वल्द शफी, कोम भट्टी, सकना 6H को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान को गिरफ्तार करके इंटेरोगेशन जारी है और मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। DPO की तरफ से SHO थाना खानेवाल कोहना हसन आफ्ताब और हमराही टीम को शाबाशी दी गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। और अब आपको बताएं, जामपुर में पोस्ट ऑफिस की 4 दीवारी ना होने से नशइयों ने डेरे जमा लिए और शहरियों का कीमती सामान भी चोरी होने का खदशा है। हमारे नुमाइंदे जुनेद खान पोस्ट मास्टर जामपुर के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी जुनेद खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामपुर पोस्ट ऑफिस में, जिसकी दीवार गुज़िश्ता होने वाली बारिशों में गिर गई थी, जो कि गुज़िश्ता कई माह से मुरम्मत ना हो सकी, जिसकी वजह से चोरी चकारी और नशइयों ने यहाँ पर डेरे जमा लिए हैं। इस हवाले से मेरे साथ पोस्ट मास्टर जामपुर मौजूद है, इनसे जानते हैं उन्होंने अब तक क्या इक़दाम किए हैं। अस्सलाम जी, मैं यहाँ पर इस टाइम में काम पोस्ट मास्टर हूँ। दरअसल यहाँ पर पोस्ट मास्टर 14 स्केल का होता है, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र हो गई 4-5 माह कबल। उसके बाद मेरे पास लुक आफ्टर का चार्ज है। गुज़श्ता हालिया बारिशों की वजह से इंसान ये दीवार गिर गई थी, जिसकी रिटन रिपोर्ट और टेलीफोनिक रिपोर्ट मैंने DS को कर दी थी। तो उनके पास फ़ंड नहीं है, उन्होंने आगे PMG को मार्क की हुई है। जब फ़ंड आ जाएगा तो बन जाएंगे, लेकिन उसके पहले जो है ना यहाँ पर भी इंटर मोहल्ले वाले उठा कर ले जाते हैं। तो उसकी शाम को जो है ना यहाँ पर हमारे पास चौकीदार भी नहीं है, तो नशई हजरात शहर के गुंडे यहाँ पर डेरा जमा लेते हैं। किसी भी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता महकमा भी और हम भी। तो मुकाम बाला से इल्तमास है कि इंसान वो जल्द अज जल्द की फिरते हैं कि आप काम जारी करें। जी, आपने पोस्ट मास्टर साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि हमने आला हुकाम को मुँह ज़बानी भी और लेटर भी लिख दिया, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई इक़दाम नहीं किए गए। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता बारिशों की वजह से ये दीवार गिरी है, उसके बाद से ये सिक्रेसी इस इदारे की ख़त्म हो चुकी है। दूसरा ये है कि बाथरूम वगैरह वाशरूम्स इनके बहर होने की वजह से टूटियाँ उखाड़ी जा चुकी हैं, नल इनके उखाड़े जा चुके हैं, दरख्तों का नुकसान पहुँचा है। और आए रोज़ ये फिर आगे सिलसिला अगर बढ़ेगा तो हमारे महल्ले का ही नुकसान होगा, यहाँ वो FIRs वगैरह कटेंगी। तो ये इल्तमास है हुकाम बाला से कि वो फिलफौर इस पर एक्शन ले, क्योंकि सिक्रेसी सबसे ज़्यादा है। यहाँ जो सामान रखा है उसके चोरी होने का वही खर्चा है। जी, अपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि यहाँ पर शहरियों का सामान पड़ा हुआ है जो कि चोरी होने का खर्चा है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है इसको फिर। अब बात करेंगे शुजाबाद के हवाले से, जहां थाना सिटी में आने वाले साइल पर मुबैना तशद्दुद करने और 20,000 रुपये नकदी जब्त करने के इल्ज़ाम में ASI मोहम्मद अब्बास को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। आपको बताएं, शुजाबाद के थाना सिटी में आने वाले साइल पर मुबैना तशद्दुद करने की दरख्वास्त पर SP सदर राव नईम शाहिद ने ASI मोहम्मद अब्बास को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जबकि तमाम तर वाक़े की मज़ीद इंक्वायरी जारी है। और अब आपको लिए चलेंगे रायवेंड, जहां पर डॉल्फिन पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद को मशकूक समझकर रोकने की कोशिश की। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। मुकाबले के बाद 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बताएं, रायवेंड डॉल्फिन पुलिस ने मामूल के मुताबिक गश्त पर थी कि 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद को मशकूक समझकर रोकने का इशारा किया। मशकूक अफराद ने डॉल्फिन पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। डॉल्फिन पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार अफराद का ताक़ुब किया। मोटरसाइकिल सवार अफराद की जानिब से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। डॉल्फिन ने अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की, जिससे एक मुलजिम जख्मी हो गया। डॉल्फिन टीम ने मुकाबले के बाद दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से एक पिस्टल और गोलियां बरामद हुई, जिनको रायवेंड पुलिस ने कब्जे में लेकर मुलजिमान के खिलाफ तफ्तीश का आगाज कर दिया है।
अब बात करेंगे फैसलाबाद के हवाले से। आपको बताएं, फैसलाबाद में पुलिस अहले इलाका के लिए खौफ की अलामत बन गई। शहरियों को बिला वजह की मुकदमात में फंसाने के साथ साथ रिश्वत का भी बाजार गर्म कर रखा है। रोडाला रोड पुलिस स्टेशन की पुलिस आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय उनको हिरासा करने लगी। ऐसा कहना था एक मुतासरा शहरी का, जो कि जग नंबर 364 गाफबे का रिहायशी है और उसका नाम मोहम्मद नसीर है। थाने रोडाले दी हदूद शरवान वाला अच्छा रोड़ा एक सदी गुबार नामी दा बंदा है, चूग चुबटवा तो डगे लाए। मैं सदी गुबार तो पैसे लेने, उस मैंने 50,000 रुपया दिता। वो अट के मुदैया ना रल के मिल के भी मैं तो गरीब बंदा, तो उस मिथों 50,000 जेड़ा लेने से पैसे मैं उन्होंने दे बैठा, तो मैनू पैसे जेड़ा नसीर नहीं देंदा पे उन्होंने मिल के ते मेरे ना पुलिस ना रल के पे डगे ले गुबार डगे। मेरे ना ज्यादती हो रही, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना SP सुन रहा ना कोई बंदा सुन रहा। मेरे ना जुल्म हो रहा, बच्चे मेरे खौफ की वजह तो ना रोटी खा रहे हैं, उन्होंने आ कुटिया मारे ने, आ रेट किया शेर ना हो ते रसीद चीमे SHO दे आखण ते लंबरां दे डेरे ते मामद खां दे जाके बच्चे ने छड़ाया इन्हें। ते हुण बच्चा मेरा है गया 12-13 साल दा, पे ना स्कूले जांदे पे, खौफ डर दी वजह तो लुके पे, ना उन्होंने कोई दिल करदा खावन करना पीवन कर। लिहाजा मैं बेगुनाह, कोई मेरे तो FIR नहीं, कोई गल नहीं, मेरे ते जुल्म ज्यादती हो रही। मेरे तो कोई मुकदमा है तो मैनू पकड़न जरूर, जे मेरे तो कोई मुकदमा नहीं FIR नहीं, झूठी मेरे तो कार्रवाइयां चल रही हैं। आज CPO ने मेरा ये मुतालबा है भी मैं बेगुनाह बंदा, मैनू बेगुनाह किया जाए, मेरे तो कोई FIR नहीं, मेरा जुल्म ज्यादती हो रही। CPO मेरे बेगुनाह मैनू करे, मेरे तो ज्यादती। इस मौका पर मोहम्मद नसीर CPO फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी से ये मुतालबा करता पाया गया है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए और अगर वो कसूरवार है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर वो कसूरवार नहीं है तो उसको और उसके घर वालों को हिरासा करना बंद किया जाए और उनके खिलाफ जानिबदाराना कार्रवाइयों को बंद किया जाए। कैमरामैन मलक मुमताज़ के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद। मज़ीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पतोकी के हवाले से। आपको बताएं, पतोकी हबीबाबाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में सहूलियात का फुकदान, मासूम बच्चे खुले आसमान और मौत के साए तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। पतोकी हबीबाबाद के नवाई गांव ठेड़ा में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। सिर्फ 3 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल की खस्ता हाली बिल्डिंग में 300 तलबा और तलबात तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं, मगर 300 तालिब इल्मों के लिए 6 टीचर्स और 1 माली है। मेट्रो 1 न्यूज़ की टीम ने जब स्कूल का विजिट किया तो स्कूल की हालत जार देखकर पत्थर की ज़माने की याद ताज़ा हो गई। टूटी फूटी दीवारें, खस्ता हाली छतें, कच्चा फर्श, फर्नीचर की कमी, वाशरूम और मीठा पानी का नाकस इंतज़ाम के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड का इंतहाई नाकस इंतज़ाम हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। अहले इलाका ने वज़ीर तालीम, DCO कसूर और असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान नूर के साथ चौधरी अजहर तुफैल, मेट्रो 1 न्यूज़, तहसील पतोकी। अब बात करेंगे महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, जिससे अवाम हुए सख्त परेशान। सब्जी समेत दीगर अशिया खुर्दोनोशी कीमतों में आए रोज़ इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। इस हवाले से पुरानी सब्जी मंडी खानेवाल में शहरियों के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ हबीब। उनसे मजीद जानते हैं। जी काशिफ, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानेवाल की पुरानी सब्जी मंडी में और यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। सब्जी के हवाले से जो इस वक्त गवर्नमेंट ने महंगाई का तूफान बर्पा किया हुआ है, लोग बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी भाई, आप बताइएगा कि आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे। सर, इस सिलसिले में हम क्या कहें, हम इतने परेशान हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते। सब्ज़ी लेने जाते हैं, कम से कम सब्ज़ी 300 से कम मिलती नहीं। आलू वो इतना महंगा है, प्याज कहाँ 20-30 रुपए थी, एकदम 70 रुपए किलो हो गया। टमाटर 120-30, और लहसुन और अदरक तो 600 रुपए किलो। वो तो हमारा हंडी में डालने का दिल ही नहीं करता, क्या करें। और रही घी वो एकदम बढ़ गया है। वो 170 का पैकेट था, 200 का मिल रहा है। चीनी वो 100 रुपये मिल रही है। जी, इतनी परेशानी। अब हम मजदूर आदमी हैं, 500-600 कमाने वाले, और वो 500-600
दूध दही और सब्जी में ही लग जाते हैं, बाकी चीज़ों का क्या करें। हाँ, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मुझे दवाइयों की भी ज़रूरत होती है और इसके अलावा काफ़ी घर में होता है, बिजली का बिल है, स्विच गैस का बिल है और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं जिसकी इंतहा नहीं है। हमने तो इस हुकूमत को इसलिए वोट दिए थे, चलो ये कुछ ना कुछ करेगी, मगर इसने तो पहली हुकूमत से ज़्यादा डबल महंगाई, ट्रिपल महंगाई कर दी। हम परेशान हैं, लिहाजा हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए और बड़े बड़े ऑफिसरों को, इन बड़े बड़े दुकानदारों, फैक्ट्रियों पर जो छापे मारे हैं उनको पकड़ें। क्यों उन लोगों ने इतनी महंगाई क्यों की हुई है? छोटे दुकानदारों को तो ये पकड़ लेते हैं, बड़ों को कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल में लाएं और गरीब आवाम का फ़ायदा करें और सोचें। शुक्रिया जी। जैसा कि इनका ये कहना था कि महंगाई का आलम इस कदर तूफ़ान महंगाई का बरपा है कि इनकी पहुंच से बाहर है कोई भी चीज़, और खाने पीने के अलावा अद्वियात की जो सूरत हाल उन्होंने बताई है कि हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम सब्ज़ी ख़रीदें या अपनी अद्वियात के लिए पैसे इस्तेमाल करें। तो जी, शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।